اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوں اور وہ شعر یہاں پڑھے جا رہے ہیں کہ رحمتوں کا پیغام لایا ماہ رمضان آیا، برکتوں کا پیغام لایا ماہ رمضان آیا، نعمتوں کا پیغام لایا ماہ رمضان آیا۔ اس وقت الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ٹرینوں میں، جہازوں میں، بسوں میں سفر کر کے عاشقان رسول فیضان مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے وہ اشعار سنے ہوں گے، اجل اجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، اور پھر امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ تجھ پہ ہو میری جاں قربان۔ الحمدللہ رمضان کا مقدس مہینہ، یہ وہ برکتوں والا مہینہ جس کا سارا سال ہی عاشقوں کو انتظار رہتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مرشدی امیر اہل سنت نے رمضان کا چاند دیکھا اور نگران شورا اشکبار ہو گئے، وہ کیا مناظر تھے آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، رب کے مہمان، رب کے مہمان، تجھ سے بخشش کا ہے سامان۔ ماہ رمضان کی آمد، مرحبا، ماہ غفران کی آمد، مرحبا، ماہ تراویح کی آمد، مرحبا، ماہ نزول قرآن کی آمد، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، سچ مچ آ گیا رمضان ہے۔ یا خدا واسیوں پر یہ تیرا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا مجھ کو کیا رمضان ہے۔ رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان آیا۔ یا اللہ ماہ رمضان کے صدقے بے حساب مغفرت، آمین۔ یا اللہ پاک رمضان کی عبادت کی توفیق ملی، مولا کریم رحمت کی نظر تھی، یا اللہ کوئی گناہ نہ تھے، کبھی بھی کوئی گناہ نہ تھے، یا اللہ پاک مدنی مذاکرات میں بدن میں ہمت رہی ہے، طاقت رہی ہے، اخلاص میں رہے، مجھے خوش اسلوبی یہ ساتھ سلسلہ جو ہے یہ انجام پائے۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف شروع ہو چکا ہے۔ ہر طرف یہاں رونق ہے اور الحمدللہ عاشقان رسول جو ہیں مختلف زبانوں کے، مختلف نسلوں کے، مختلف قبیلوں کے، مختلف جو ہیں اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ فیضان مدینہ آ چکے ہیں۔ بلوچستان سے بھی آئے ہوئے ہیں، KPK سے بھی آئے ہوئے ہیں، کشمیر سے بھی آئے ہوئے ہیں، پنجاب سے بھی ہیں، سندھ سے بھی ہیں۔ اب ان کے یہاں پر کارڈ بن رہے ہیں، فارم بھرے جا رہے ہیں، تصدیقیں ہو رہی ہیں، رش لگا ہوا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے میرا کارڈ پہلے بن جائے، میرا فارم پہلے بھر دیا جائے، کیونکہ ایک عطار ہیں اور لاکھوں کروڑوں بیمار ہیں۔ سب چاہتے ہیں کہ امیر اہل سنت کی صحبت ملے، مرشد کے دسترخوان پہ حاضری ہو، سب چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی چوکھٹ پہ ہم بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہیں اور زمانے کے ولی امیر اہل سنت کا قرب مل جائے، ہمیں ان کا مدنی مذاکرہ مل جائے۔ تو انٹرنیشنل مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انٹریاں اب تک کتنی ہو چکی ہیں، کتنے کارڈ بن چکے ہیں، کتنے فارم بھر چکے ہیں، آئیے ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہر طرف فیضان مدینہ میں رونق لگ چکی ہے، اعتکاف کی بہاریں آ چکی ہیں، خوشی کا سما ہے، برکتوں والا مہینہ آ چکا ہے، نعمتوں والا مہینہ آ چکا ہے۔ الحمدللہ یہ عاشقان رسول کا جو ہجوم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ الحمدللہ یہاں کارڈ بنائے جا رہے ہیں، ان کے فارم بھرے جا رہے ہیں اور یہ انٹری ہو رہی ہے۔ جی آپ کتنے لوگوں کی انٹری کر چکے ہیں؟
200-300 कर चुका हूँ तकरीबन। 300 कर ली एंट्री। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल जब्बार तारिक। जी भाईजान, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली। क्या कर रहे हैं आप ये? मैं एंट्री कर रहा हूँ, इनको अप्रूवल दे रहा हूँ। जी इम्तियाज भाई, कितने अब तक फाइनल हो चुके हैं कार्ड? हुज़ूर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है हमने 180 हलकों के जो है ना हमारे कार्ड बन चुके हैं। 180 हल्के में कितने अफराद होंगे? मोबाइल ये 3000 होगा ये? अब 15 इस्लामी हैं एक हलके में, तो उसके हिसाब से 15 इस्लामी भाई एक हल्के में। हज़ारों लोग तो मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह। और कई तो अभी अब देख लें एंट्रियाँ बाकी हैं माशाल्लाह। हमारे इस्लामी लाइन में लगे हुए हैं, ये इनकी एंट्रियाँ होंगी, इनके कार्ड बनेंगे, ये भी हलकों में जाकर फिर शिरकत करना शुरू कर देंगे। आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी इनकी यहाँ पे तस्दीक कर रहा हूँ। इनकी तस्दीक करके इन्हें मैं तस्दीक में क्या मांगते हैं आप? तस्दीक में हम इनके ओरिजिनल जो CNIC होता है वो, उनका नंबर, उनका मुकम्मल जो एड्रेस होता है वो हम देते हैं, मांगते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। ऑनलाइन का भी सिस्टम है और यहाँ कार्ड बन रहे हैं, एंट्री हो रही है, NIC मांगी जा रही है, तस्दीकें हो रही हैं और एक पूरा एक तरीक़ेकार दिया हुआ है कि जिसको भी यहाँ एतकाफ़ करना हो वो किस अंदाज से एतकाफ़ की तरकीबें बनाएंगे। आइए मज़ीद आपको आगे इसके मनाजिर दिखाते हैं कि ये आशिकान रसूल किस अंदाज से लाइनों में लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का बहुत अहम तरीन एक शोबा है शोबा तालीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस शोबे के तहत भी जो है वो आशिकान रसूल 1 माह के लिए 10 दिन के लिए इत्काफ़ करते हैं। इसकी मजलिस इस वक्त हमारे सामने है। मजलिस के अरकान से भी हम कुछ इस हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शोबा तालीम के शोबा ये कितने सालों से बना हुआ है? तकरीबन इसको 26 साल हो गए हैं। तो हुजूर फरमाएं कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ इत्काफ़ आपके शोबा तालीम के तहत हो रहा है? तकरीबन पूरे पाकिस्तान में शोबा तालीम के तहत एहतिकाफ़ हो रहा है और एक बहुत बड़ा मरकज़ी जो है ना फैज़ान मदीना में है, जिसमें 1 माह का एहतिकाफ़ भी है और 10 दिन का भी है। इसमें कॉलेज अच्छा। और यूनिवर्सिटी फैज़ान मदीना में है या कराची के और मसाजिदों में भी? कराची की और मसाजिद में भी हैं, उसमें भी एहतिकाफ़ हो रहा है। उसमें शोबा तालीम के तहत तलबा और असातिज़ा इंशाअल्लाह तशरीफ़ ला रहा है। अच्छा, स्टूडेंट भी हैं, इनके टीचर भी हैं। शोबा तालीम में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेन 3 फोरम है। हमारा PhD फोरम यूनिवर्सिटीज़ पर वो अलग से है, टीचर फोरम पाकिस्तान पे वो अलग से है और स्टूडेंट पर हमारा अलग से निज़ाम है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन डिवीज़न ज़िम्मेदार शोबा तालीम और डिस्ट्रिक्ट ज़िम्मेदारान, फिर तहसील, फिर हमारा इदारा तक, यानी इदारा हमारा ज़ेली हल्का है, वो यूनिट है हमारा इदारे पर। तो एतकाफ़ में क्या पोजीशन है? क्या 1 माह के लिए भी ये लोग आ जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना में भी और पाकिस्तान भर में जहाँ 26 मकामात में हमारे इस्तिकाफ़ हो रहे हैं 1 माह के, उसमें एक तादाद स्टूडेंट्स की भी है, टीचर्स की भी है और इस तरह PhD डॉक्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, माशाल्लाह काफ़ी तादाद में माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हुए हैं। आपकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के इदारे दारुल मदीना में एज़ अ प्रिंसिपल मुल्तान शरीफ में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एतकाफ़ में आने वाले हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह यहाँ पर हम एक अलहदा से हलके बना रहे हैं और उन हलकों में इंशाअल्लाह उनकी तरबियत का सिलसिला होगा ताकि उनको भी मुबल्लिगीन बनाया जाए और दावत इस्लामी की खिदमत उनसे भी ली जाए। माशाल्लाह, अल्लाह आप सबकी कोशिशें कबूल करे। शोबा तालीम के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, मजलिस के अरकान हैं, वो डॉक्टर हों, प्रोफेसर हों, इसी तरह प्रोफेशनल लोग हैं। दारुल मदीना भी एक पूरा इनका एक इदारा है, उसमें भी ये लोग तरकीबें कर रहे हैं। तो मज़ीद क्या तैयारियाँ हैं आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर अभी इस वक्त जो है इंफॉर्मेशन डेस्क और हेल्प डेस्क के ज़रिए जो है हमारे जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स और जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, इनको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम सर्विस दे रहे हैं और इनके लिए एहतिकाफ़ फॉर्म और एहतिकाफ़ के जो मामलात हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे अंदाज में करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एजुकेशनिस्ट हैं और कई इदारों में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो है खिदमत होती हैं और कई स्टूडेंट्स भी इनके साथ जो है इन्वॉल्व होते हैं और ये हमारे बहुत अहम यूँ कह लें कि एक हमारा एसेट है, क्योंकि इनकी जो तरबियत है ना, अगर दीन और इस्लाम के लिए और यूँ कह लें कि अगर इनकी जो हमारी तरबियत है एक कुरान और सुन्नत की तरबियत और हम
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है हमारे बानी दावत इस्लामी कादरी साहब के साथ जो है एक सोहबत में रह के जो तरबियत मिलेगी, इंशाल्लाह ये जाकर कई इदारों में अपने स्टूडेंट्स को भी ये तरबियत देंगे। और यही एक सोच है दावत इस्लामी की कि हम मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों को इस्लाह की कोशिश करनी है। और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अभी इस वक्त हमारे पास कि यहाँ पर अपने इस्लामी भाई जो है यहाँ पे जमा होते हैं और एक माह का एहतिकाफ करते हैं, अपनी इस्लाह करने की भी अल्हम्दुलिल्लाह जरिया है। और फिर यहाँ से निकलने के बाद कई मकामात पर जाकर जो है लोगों की इस्लाह कर रहे होते हैं। हुजूर, मदनी चैनल के नाजरीन को दावत इस्लामी के हवाले से कोई मैसेज देना चाहे एतकाफ़ के हवाले से? ज़िंदगी की मुख्तलिफ डायमेंशंस होती हैं, मुख्तलिफ उसकी शख्सियत के पहलू होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक कोई शख्स जो है वो डॉक्टर है, वो सिर्फ डॉक्टर नहीं है, वो एक बेटा भी है, वो एक बाप भी है, वो एक शौहर भी होता है, वो एक दोस्त भी होता है, वो एक हमसाया भी होता है, वो एक चचा भी है, वो एक मामू भी है, वो एक भांजा भी है, वो एक भतीजा भी है, वो एक दोस्त भी है। तो बहुत सारी डायमेंशन इंसान की ज़िंदगी में होती हैं और वी शुड कंप्लीट इन एवरी डायरेक्शन। हमें हर मामले में कंप्लीट होना चाहिए। मिसाल कोट की है कि एक अच्छा डॉक्टर है तो हमें एक अच्छा बेटा भी बनना है, हमें अच्छा वालिद भी बनना है, हमें अच्छा शौहर भी बनना है, हमें एक अच्छा हमसाया भी बनना है, हमें अच्छा दोस्त भी बनना है, हमें एक अच्छा शहरी भी बनना है। और वी शुड बी अ गुड मुस्लिम फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, क्योंकि इस्लाम एक यूनिवर्सल दीन है। अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया, देखे किसी मुल्क में हम जाते हैं तो वहाँ लिखे जाते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ हिज सिटीज़न। उस मुल्क में एक आइन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसके तहत उसके शहरियों के हकूक़ होते हैं। इसी तरह इस्लाम एक यूनिवर्सल दीन है, तो इस्लाम ने भी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दिए हैं शहरियों को, लोगों को। तो लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त है कि जो मुसलमान हैं, हम में से जितने भी आशिकान रसूल हैं, वो ज़िंदगी के हर डायमेंशन पर इस्लाम हमारी गाइड करता है। और मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब, आप दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में तशरीफ़ फरमा होते हैं और मदनी मुज़ाकरे होते हैं रमज़ानुल मुबारक में 2-2। आप एवरी डायमेंशन कोशिश करते हैं कि हर एक के मुख्तलिफ सवालात ने, दिलचस्प सवालात ने, और हमारी ज़िंदगी पे हमें गाइड करें। आप देखें कस्टमर केयर के उसूल कितने ज़बरदस्त बयान करते हैं, टाइम मैनेजमेंट के उसूल कैसे बयान करते हैं। हेल्थ इज़ वेरी हेल्थ कॉन्शियस, आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हमें भी बनाते हैं। और आज हमारे मुआशरे सोसाइटी के अंदर अगर आप देखें तो 30% मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों कि पाकिस्तानी जो हैं वो 30% डायबिटिक पेशेंट हो गए हैं। तो लिहाजा वो शुड भी हेल्थ कॉन्शियस। इलियास कादरी साहब ने जो किताब लिखी फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल, उसके 4 चैप्टर हैं, उसमें 2 चैप्टर खाने पीने से मुतल्लिक हैं, हेल्थ कॉन्शियस के मुतल्लिक, हेल्थ कॉन्शियस बनाते हैं। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त है वे किस किस पहलू पर बात की जाए। अगर आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होते हैं, अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की गुफ्तगू सुनते हैं, दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया का बयान सुनते हैं, अगर आप मदनी चैनल से वाबस्ता हैं, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू पर इंशाअल्लाह हमारी तरबियत हो जाएगी। तो हमें तरबियत देनी है और इस दुनिया को कामयाब बनाकर आखिरत में कामयाबी हासिल करनी है। आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए कोई और दुनिया नहीं है, वो यही दुनिया है जिसमें अपनी अच्छी दुनिया को अच्छा करके आखिरत को अच्छा करना है। हमें कुरान पाक में दुआ सिखाई गई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। तो दुनिया भी अच्छी करनी है और आखिरत भी अच्छी हमने करनी है। अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी नसीब फरमाए। मैं एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये एक ट्रेन है रमज़ान एतकाफ़ एक्सप्रेस, इंशाल्लाह आइंदा भी ट्रेनें आती रहेंगी। एजाज भाई, ये इरशाद फरमाएं कि अंदाज़न अब तक कितने मोतकिफ़िन आ चुके हैं? आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3500 से 4000 इस्लामी भाई पहुँच चुके हैं कमोबेश। अच्छा, ये इरशाद फरमाएं कि ये इतना बड़ा हज़ारों की तादाद में लोग हैं, मुख्तलिफ़ कौमों के, मुख्तलिफ़ नस्लों के, मुख्तलिफ़ ज़बानों के, किस तरह आप इनको मैनेज कर रहे हैं? चैलेंजेस भी होते होंगे, मसाइल भी होते होंगे, क्या निज़ाम है आप लोगों का इसमें? लेकिन घर में 2 से 4 या 5 अफराद होते हैं, उसमें भी बहुत सारे मसाइल का बिलखुसूस रमज़ान मुबारक में सहरी इफ्तारी के हवाले से हो जाता है। तो यहाँ फैज़ान अमील सुन्नत है, अल्लाह रसूल का करम है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारी मुख्तलिफ़ मजालिस बनाई हुई हैं, जैसे उठाने वाले, सुलाने वाले, खिलाने वाले, खाना लेकर आने वाले
اور جو تھوڑا کبھی سستی کا شکار ہو جاتے ہیں ان پر انفرادی کوشش کر کے محبت الفت کے ساتھ ان کو مدنی مذاکرے میں شرکت کروانے والے ماشاءاللہ فجر کے ٹائم نگران شورا بڑا زبردست قسم کا بیان فرماتے ہیں، اس بیان میں شرکت کے حوالے سے پھر تراویح ماشاءاللہ 20 کے 20 الحمدللہ فیضان مدینہ میں جماعت کے ساتھ اعتکاف والے عاشقان رسول پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو مختلف قسم کی مختلف مجالس بنائی جاتی ہیں اور الحمدللہ ان کے ذریعے ان عاشقان رسول کی خدمت کی جاتی ہے جو اعتکاف کے لیے پورے ماہ کے لیے فیضان مدینہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں؟ کچھ شہروں کے نام یا صوبوں کے نام وغیرہ؟ جی ہاں، پاکستان سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، بیرون ملک سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ پاکستان جیسے حیدرآباد ہے، آپ کا ملتان ہے، فیصل آباد ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، اس کے ارد گرد کے بھی اطراف کے بھی اسلامی بھائی ماشاءاللہ الکریم یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ بیرون ملک سے بھی الحمدللہ کے پی کے اور بلوچستان سے بھی اسلامی بھائی ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بیرون ملک سے بھی عاشقان رسول پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ حلقہ بنا ہوا ہے، یعنی 15 افراد ہیں، ان پر ایک امیر ہے، اور اس کے اوپر کون ذمہ دار ہے، کیا اس کا نظام ہے؟ ماشاءاللہ جیسے آپ نے پہلے ارشاد فرمایا نا کہ نظام کو کیسا سنبھالا جاتا ہے، تو اس میں الحمدللہ رب العالمین مشاورت جو بنتی ہے، مجالس بنتی ہیں، تو 15 اسلامی بھائیوں پر ایک حلقہ بنایا گیا اور 20 حلقوں پر ایک علاقہ بنایا گیا، یعنی 15 کو لیڈ کرنے والا ایک اسلامی بھائی، ان 20 کو جو 15 کو لیڈ کرنے والے ہیں ان کو لیڈ کرنے والا ایک اسلامی بھائی جس کو ہم علاقہ نگران کہتے ہیں۔ پھر اس علاقائی نگران کو لیڈ کرنے والا ایک ڈویژن نگران ہوتا ہے اور اس 2 یا 3 ڈویژن نگرانوں کو مل کر پھر ایک ہمارا نگران بنتا ہے جو اوورال اعتکاف کے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ بتائیں کہ اعتکاف کا جو پورا جو نظام ہے، یہ تو 1 ماہ کا آپ فرما رہے ہیں، 10 دن کے لیے بھی لوگ آئیں گے تو پھر کیا نظام ہوگا اور اس کی تعداد اندازاً کتنی ہوتی ہے؟ عمومی طور پر تقریباً 8 9 7 8 9 10 تک اعتکاف کے اس پورے ماہ کے اور آخری عشرے کے ملا کر ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تقریباً 8,000 تقریباً 7 8,000 9,000 اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں کے نظام اور معاملات اور جگہ کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جب فل ہو جاتی ہے تو پھر عرض کر دیا جاتا ہے کہ ابھی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جگہ نہیں۔ اچھا، لوگ جو اعتکاف کرنے آئے ہوئے ہیں یہاں پر، کیا میجورٹی نئے لوگوں کی ہیں اور ان میں چینجنگ کیا آتی ہے اعتکاف کر کے؟ عمومی طور پر ماشاءاللہ الکریم داڑھی شریف، امامہ شریف اور گھر والوں کے ساتھ جو ان کا رہن سہن ہے، اگر وہ ایز اے بیٹا ہے تو ماں باپ کے ساتھ، ایز اے شوہر ہے تو بیوی بچوں کے ساتھ، اگر وہ ایسا گھر معاشرے کا فرد ہے تو معاشرے کے ساتھ بہت اچھے انداز سے اس کا رہن سہن اور 5 نمازیں باجماعت پڑھنا، اس طرح کی تبدیلیاں الحمدللہ پچھلے سال کے اعتکاف کی مشاہدے ہیں ہمارے۔ اچھا، تھوڑا سا شیڈول اگر ہمیں اعتکاف کا آپ فرمائیں کہ اعتکاف کا جدول کس انداز سے آپ لوگوں نے مینیج کیا ہے، وہ جدول اگر بیان ہو جائے۔ الحمدللہ اس میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی بہت اچھے انداز سے اور آرام کا بھی سلسلہ بہت اچھے انداز سے، جیسے ہم لگاتے ہیں کہ 1 بجے ان کو بیدار کیا جاتا ہے اور ان کو مدنی قاعدہ قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اس بار ہماری نیت ہے کہ 1 ماہ کے پورے ماہ کے اعتکاف کرنے والے اسلامی بھائی یہ مدنی قاعدہ اپنا ٹیسٹ بھی دیں گے اور انشاءاللہ ان کو سند بھی پیش کی جائے گی۔ اچھا، اور یعنی یہ مدنی قاعدہ مکمل کر کے یہاں سے جائیں گے۔ پھر نماز ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، 2:30 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز ظہر ادا کی جاتی ہے۔ نماز ظہر کے بعد پھر ان کے سیکھنے سکھانے کا، نماز کے مسائل سکھائے جاتے ہیں، دعائیں سکھائی جاتی ہیں، سنت آداب سکھائی جاتی ہیں۔ پھر 4 بجے قریب ان کو وقفہ مل جاتا ہے، تقریباً 1 سوا گھنٹہ ان کو وقفہ دیا جاتا ہے۔ آذان اثر، پھر نماز اثر کے بعد مدنی مذاکرہ، بہت ہی ماشاءاللہ ایک مدنی چینل کا بھی اور عوام کا بھی مشہور و معروف سلسلہ ہے مدنی مذاکرہ۔ اس میں امیر سنت سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں، نماز مغرب عطا کرتے ہیں، نماز مغرب کے بعد پھر کھانے کا سلسلہ، اور نماز عشاء کے بعد تراویح کے بعد پھر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ طاق راتوں میں پھر صلاۃ و تسبیح کا سلسلہ ہے، اور طاق راتوں میں صلاۃ و تسبیح کے بعد پھر کچھ آرام دیا جاتا ہے، پھر بیدار کر کے نماز تہجد کا سلسلہ۔ جفت راتوں میں ہم اراکین شورا جو ہے ماشاءاللہ اور مبلغین دعوت اسلامی وہ وقت عطا فرماتے ہیں، اور مدنی مذاکرے کے بعد بیان کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر سحری کے بعد قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں اسلامی بھائی۔ نماز فجر کے بعد نگران شورا کا سنت و برا بیان ہوتا ہے، اس میں میری سنت بھی کرم فرماتے ہیں، مختلف مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ پھر اشراق و چاش کے بعد وقفہ آرام ہوتا ہے، اور یہ 1 بجے تک یوں تو الحمدللہ وقفہ آرام بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور تربیت سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی بہت اچھے انداز سے ہو جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عاشقان اعتکاف میں امیر اہل سنت نے عصر کے بعد مدنی مذاکرہ فرمایا اور مناجات افطار ہوئی، رکعت انگیز دعا ہوئی۔ آئیے آپ کو دعا کے مناظر دکھاتے ہیں۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم بھی بخشے جائیں، ہمیں بھی جہنم سے آزادی
नसीब हो जाए, वरना हमारे अमल तो जहन्नम में जाने ही के काबिल है। इलाहुल आलमीन, मगर तेरी रहमत बहुत बड़ी है। ऐ अल्लाह पाक, अपने फजलो करम से हम सबको बेहिसाब बख्श दे। या अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमारे नाम अमाल की सियाही को मिटा दे। इलाहुल आलमीन, हमें नेकियों से मोहब्बत और गुनाहों से नफरत दे दे। मौला करीम, हमारे मरीजों को शिफा अता फरमा, हमारे मकरूजों के कर्जे उतर जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आलमी मदनी मरकज़ में दस्तरख़्वान सज चुका है। हज़ारों आशिकान रसूल मुख्तलिफ़ कौमों के, मुख्तलिफ़ नस्लों के, मुख्तलिफ़ ज़बानों के एक दस्तरख़्वान में अमीर अहले सुन्नत ने इनको जमा कर दिया। और ये सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है बल्कि ओवरसीज़ वाले भी ऊपर हैं कि बैरून मुल्क से ये लोग आए हुए हैं। इनका भी अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरख़्वान सजा हुआ है, इफ़्तार हो चुकी है और अभी ये खाने का सिलसिला जारी और सारी है। याद रखिएगा कि अमीर अहले सुन्नत की कोशिशों से ये गुलिस्तान ऐसा सजा है कि आज पाकिस्तान के कम व बेश 26 मकामात पर ये इज्तिमाई एतकाफ़ हो रहा है और इसी तरह सहरी के और इफ़्तार के दस्तरख़्वान सजे हुए हैं। आइए हम मैनेजमेंट जो फैज़ान मदीना की है, जो मैनेजमेंट का इंतज़ाम देख रहे हैं फैज़ान मदीना में, पूरी एक टीम है जिसको ये लीड कर रहे हैं। आज हम उनकी तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि बताइए हज़ारों लोगों का इंतज़ाम ये आप किस अंदाज से मैनेज कर रहे हैं। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह साल साल ही बाकायदा इवेंट्स होते रहते हैं, मुख्तलिफ जो है आशिकान रसूल की आमद का सिलसिला रहता है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क से भी कसीर आशिकान रसूल अभी एहतिकाफ़ के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल की तशरीफ़ आवरी हुई है। तो यहाँ मैनेजमेंट का वैसे तो बाकायदा स्टाफ यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। जैसे खाने की आपने स्टाफ जो है वो कितना है, अंदाज़ा है कोई, अंदाज़न सिर्फ फिगर आ जाए कोई? एक्चुअली स्टाफ के हवाले से जो ना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, मसलन जैसे हाउस कीपिंग का हमारा डिपार्टमेंट है जो ओवरऑल जहाँ की सफाई सुथराई और दीगर तमाम तरह इंतजाम, वो कितने अफराद पे मुश्तमिल होगा? ये वैसे इस वक्त जो रमज़ान मुबारक में जो है हमारे पास हायर्ड स्टाफ है तो वो तकरीबन 250 के करीब है। 250 अफराद जी। एक्चुअली ये तो वो हैं जो पेड हैं, सही है, जो दावत सामी जिनको सैलरी पे करते हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल वॉलंटियर्स जो माशाल्लाह खिदमत के लिए, मोतक़िफ़ीन की खिदमत के लिए यहाँ पर जो है मामूर हैं। फैज़ान मदीना में जो अभी ओवरऑल जो बैठे हुए सामी भाई एतकाफ़ में, एक अंदाज़ा है कितने होंगे ये? इस वक्त तक जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुकी है उसके मुताबिक हमारे पास मोतक़िफ़ीन की तादाद तकरीबन 3600 है। अच्छा, और मज़ीद और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ मजालिस भी हैं, मुख्तलिफ जैसे अभी जिक्र हुआ कि हमारे पास खादमीन का स्टाफ है, मुख्तलिफ डेटा एंट्री का स्टाफ है, हॉस्पिटैलिटी का स्टाफ है। अभी थोड़ी देर पहले देखा कि देगें आ रही हैं यहाँ पर, पूरी गाड़ियाँ चल रही हैं देगों की, खाना भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो खाना बनाने वाले कितने होंगे, या किचन बहुत बड़ा इसका बना हुआ होगा, या कहीं और से बनकर आ रहा है खाना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किचन फैज़ान मदीना में ही मौजूद है। फैज़ान मदीना से मुत्तसिल मरकज़ में मुत्तसिल बिल्डिंग है। अच्छा। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह किचन है। यहाँ पर सबका खाना यही बनता है? ना सिर्फ इनका खाना बल्कि कराची के मुख्तलिफ जो है मदारिस का, जामियात का खाना भी यहाँ पर बनता है, यहीं से बनता है। और यहाँ बाकायदा हमारे पास किचन है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह सब पूरा निज़ाम है। खाना अगर बनता है कुछ बच जाने की सूरत में जो है उसको सेव भी किया जा सकता है, FGRF के ज़रिए जो है मुख्तलिफ लोगों तक भी पहुँचाया जा सकता है। जैसे अमीर अल सुन्नत ये ज़हन देते हैं ना कि खाना जो बच भी जाए तो वो किसी के पेट में जाए, खुदा न खासा उसको कुछ ज़ाया करने का मामला ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ रिज़्क़ का भी बाकायदा मामला है। फिर जैसे आपने स्टाफ की बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 50 प्लस का जो है स्टाफ किचन में मौजूद है कि जो कि बाकायदा खाना, चाय, इसकी फिर बाकायदा यहाँ तक पहुँचाना। अब चाय जो है ये किस तरह मतलब मैनेज होती है? यहाँ तो इतने सर नज़र आ रहे हैं, तो इन सबको चाय पिलाते हैं आप लोग? जी जी माशाल्लाह, इस पर भी पूरी मैनेजमेंट ने एक सिस्टम बनाया है। चाय की तो फिर देगी होती होंगी यहाँ पर जो आती होंगी नीचे से? बाकायदा ये 15 अफराद पर, जैसे 15 इस्लाम पर मुश्तमिल हल्के हैं, तो हल्के हैं, यानी हर हल्के में जो है एक केटल दे दी जाती है। बाकायदा इसकी केटल्स हैं कि जो इन्हीं की मुनासबत से मंगाई गई हैं कि 15 अफराद को किफ़ायत करे। अच्छा, ये दस्तरखान तो एक यहाँ सजा हुआ है, एक दस्तरखान वहाँ सजा हुआ है जहाँ दावत इस्लामी के अमीर मौलाना इलियास कादरी भी बैठे हुए हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो उनके साथ दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं। तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है, वहाँ कैसे जाते हैं? क्योंकि दुनिया भर में नाज़रीन चाहते हैं कि हमें अमीर अहले सुन्नत के साथ सहरी मिल जाए, इफ्तारी मिल जाए, इनके दस्तरखान पे हम भी बैठ जाएँ। तो उसका क्या तरीक़ेकार है जो वहाँ पहुँचे हुए हैं अभी इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जो ये एतिकाफ़ की बहारें हैं
तो यकीनन यूँ कहा जा सकता है कि 100% हर एक ख्वाहिशमंद होता है कि अमीर अल-सुन्नत की सोबत पाए, अमीर अल-सुन्नत के साथ सहरी इफ्तारी करने की सादत पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजलिस ने इस पर जो है बाकायदा वर्किंग की है और रोज़ाना जो है के एतबार से कुछ हल्के नॉमिनेट होते हैं। जैसे आज हल्का नंबर 1 से 20 तक वो अमीर अल-सुन्नत के साथ सहरी करेंगे, फिर हल्का नंबर 21 से 40 तक ये अमीर अल-सुन्नत के साथ इफ्तारी करेंगे, फिर अगले दिन इसी तरह। तो यूँ ये जो है बाकायदा इसका जो है सिस्टम चलता है। यानी एक बार जो राउंड पूरा हो जाएगा, जैसे 200 प्लस हल्के बन चुके हैं अब तक, और पूरे हमारे एतिकाफ़ के तकरीबन 450 के करीब हल्के बनेंगे। तो जब इनका राउंड पूरा हो जाएगा तो फिर हल्का नंबर 1 से बारी जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये भी बताएं कि यहाँ कोई हॉस्पिटल भी मुझे बताया गया है कि कायम है मोतकिफ़ीन के लिए। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में दावत इस्लामी का जो शोबा तिब्बी इलाज, इसका एक सब डिपार्टमेंट है क्लिनिक। वो बाकायदा यहाँ ना सिर्फ रमज़ान के लिए बल्कि साल साल यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। और फिर में अगर कोई अल्लाह ना करे कोई बीमार भी हो जाता है तो यहाँ डॉक्टर्स डबल 12 घंटे मौजूद जी यहाँ पर 24/7 जो है फर्स्ट एड के लिए जो स्टाफ मौजूद है, और इन केस एमरजेंसी अगर किसी को कहीं रेफ़र भी करना हो तो हमारे पास 24/7 एम्बुलेंस की सर्विस भी मौजूद है। यहाँ मौजूद है उसके लिए माशाअल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि पहले दावत इस्लामी मदनी बहारें एक्टिविटीज़ सुनाया करती थी, अब तो आपको दिखाया जा रहा है। ये अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल रऊफ़ मदनी जो हैं, ये फैज़ान मदीना के एतिकाफ़ के मैनेजमेंट को माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से लीड कर रहे हैं। अल्लाह इनकी कोशिशें कबूल करे और हम सब को आइंदा साल रमज़ान मदीने में नसीब करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बहुत कुछ आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल फैज़ान मदीना मरकज़ से आपको जो है वो अपडेट दी है। अगले एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे और इंटरनेशनल एतिकाफ़ के मनाजिर और इसकी बहुत अहम तरीन अपडेट आपको देंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।